full. I'm in Delhi, and those of you just joined me on YouTube, namaste, welcome to this Happy Minds. This is Happy Minds number. चलो तुम लोग ही बताओ ये कौन सा Happy Minds number है. नमस्ते सुप्रिया, प्रकाश, शांत, अमोल, wow, Sanjay, Santosh, Ganesh. Lovely to see all of you. चलो बताओ कौन सा Happy Minds है. 1158, 1157. कंफ्यूजन है लोगों को. 1157, 1158. नंबर कोई भी होने तो चलो ठीक है. विश्वास है सर, मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि ये 1157 है. चलो ठीक है. वेलकम टू हैप्पी माइंड्स नंबर 1157. ग्रेट. तुम ऐसे नंबर बढ़ा देते हो. चलो ग्रेट. वेलकम नरेश, एवरीबॉडी. Wonderful to see all of you. I have quite a few success stories this very morning. I'm, on my way back to Pune from my life, and I'll share a bit about my life. It has been a beautiful program, बहुत बढ़िया my life program रहा, and I'm going to also share today with all of you about why we miss out on growth. हम क्यों miss कर जाते हैं अपनी growth को, and a lot of us, in spite of all that which we think कि हमें ये करना है, हमें यहाँ पहुंचना है, या whatever we have thought of for our growth, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते. तो क्यों? I'll share with you. But before that, I have quite a few success stories which I want to share with all of you. And of course, I'm on my way from my life. So एक अलग glow, एक अलग flavor होता है my life का. So maybe in Happy Minds, you might see that glow and that flavor. And it has been one of the most beautiful my life seasons for me, and I think for all the participants also. हर बार ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि इससे बढ़िया नहीं हुआ, इससे बढ़िया नहीं हुआ, और इस साल भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे बढ़िया माय लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. चलिए आगे बढ़ते हैं, और कीप योरसेल्फ ट्यून्ड इन. आई एम इन दिल्ली इन अ होटल, एंड आई थिंक माय कनेक्शंस आर स्टेबल, और सब कुछ बढ़िया है. कीप ऑन गिविंग मी some kind of a indication if something goes wrong, तो आप मुझे बताएंगे. And maybe my team can share with me on the chat, because this is Vandana is there. Vandana, I think Vandana, you're from Delhi, is it? Chalo, and all of you there, if there is some challenge with the connection, with the gadgets and the entire things here, let me know. ठीक है, मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, मैं अपने फ्लो में बोलते रहूंगा. चलो ठीक है. Great. I have a few success stories to share with you to start with. Those of you who joined me for the first time, I just want to share with you how we start, what we do in Happy Minds. So we start with meditation, and then we have a round of success stories. तो कुछ लोगों ने जो लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स पाई होती हैं, कुछ उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हुआ होता है, they share with us, they share with me, they share with my team, and फिर उसमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं Happy Minds में शेयर करता हूँ. The reason why we have these success stories is because it's very inspiring that somebody has done something beautiful. मेरे लिए बड़ा inspiring होता है कि कहीं मेरे योगदान से, मेरे कंट्रीब्यूशन से, मेरे शेयरिंग से, मेरी जिंदगी जीने के तरीके से, if somebody has been able to live a better life, a bigger life, a more fuller life, तो फिर मुझे लगता है कि this is very inspiring for me. And second is, मुझे लगता है कि जब ये stories हम share करते हैं, these stories are of ordinary people like you and me, और हम अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं और वो न्यूज़ मिलती है लोगों को, तो लोगों के अंदर भी एक प्रेरणा होती है, जागृत होती है. They also feel inspired that they can also live a much bigger life than what they have been living. And that's the reason why I share those success stories. And of course, uske baad, I have my own sharing about for that week. And I feel that we all need inspiration in huge doses. And हम सब के अंदर भी एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि can my life be a lot better than what it was yesterday. और ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी, हम सब की है कि हम जो हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, those who are in love with us, those who are there in our circle, उनको हमारा बेस्ट मिले. I was sharing in my life and with all the participants, हमारा बेस्ट ना देना, हमारा अच्छी जिंदगी ना जीना, it hurts many people. हम सोच भी नहीं सकते
उन लोगों को हर्ट करता है जब हम अपना बेस्ट नहीं देते हैं। जब हम अपना बेस्ट नहीं देते हैं, इट हर्ट्स आवर चिल्ड्रन, राइट? दे डोंट सी द बेस्ट ऑफ पेरेंट्स, दे डोंट सी द दे डोंट गेट द बेस्ट ऑफ पेरेंटिंग, राइट? जब हम अपने ऑफिस में होते हैं एंड वी डोंट गिव आवर बेस्ट, we hurt the entire organization. We hurt our colleagues, we hurt our bosses, we hurt the customers, we hurt the various touch points of our organization. जब हम एज ए लीडर होते हैं ऑफिस के अंदर, एज अ बॉस होते हैं एंड वी डोंट गिव अ बेस्ट, समवेयर that's where the entire organization is hurt. आज मेरा टॉक है इन दिल्ली, आई एम एड्रेसिंग अ कंपनी हियर इन दिल्ली एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस द एंटायर टॉप मैनेजमेंट हियर टुडे on leadership and why leaders got to take up the leadership positions with much more sincerity than ever before. तो जितनी लीडरशिप की आज जरूरत है उतनी आज से पहले कभी नहीं थी, और ये लीडर्स को समझ में आना चाहिए. So when as leaders we don't give our best, we hurt a huge number of people. एक एक लोअर रंग का आदमी जो एक लो लेवल पे है, जिसके नीचे कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपना बेस्ट ना दे तो उसका जो दायरा होता है, बेस्ट ना देने का इम्पैक्ट होता है, वो कम होता है. बट एज अ लीडर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, अगर वो अपना बेस्ट नहीं दे रहा है, तो फिर तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है, होती है. एंड दैट्स द वे इट इज एवरीवेयर. अगर देश का प्रधानमंत्री अपना बेस्ट नहीं दे रहा है, इट हर्ट्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, इजंट इट? तो बड़ा जरूरी है कि जब आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आते हो, जब आप एक बड़ी पोजीशन पे आते हो, यू गिव योर बेस्ट. और मुझे लगता है कि जो मुझे सुन रहा है वो लीडर ही है. सो आर नॉट गिविंग अ बेस्ट हर्ट्स मेनी पीपल, ये याद रखिएगा. सो इवन इफ एट अ लोअर लेवल it hurts a few people around us. If you're at a higher level, it hurts a huge number of people. तो हैप्पी माइंड्स का मेरा एक यही उद्देश्य है, ये एक मिशन है कि क्या मैं हर हफ्ते, can I inspire a few souls? Can I, through my connectivity, through my sharing, can I instigate, कहीं आपके अंदर हल्का सा मैं कहीं आपको नच कर दूं कि आप अगर इतना देते थे तो इतना दे दो आज, कहीं आप इतना भागते थे तो आज इतना और भाग लो, कहीं आप इतनी एक्सरसाइज करते थे तो इतनी एक्सरसाइज और कर लो, कहीं आप इतना लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करते थे, थोड़ा सा इतना और कर लो, आप अपने ऑफिस में इतना काम करते थे, थोड़ा और कर लो, आप इतना समाज में काम करते थे, थोड़ा इतना और कर लो. एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन the last so many years, 25, 26 years of my life, which has been into people development with this very mission. Can I somewhere nudge people to do uh, something better in their lives? So that's what the objective is for this Happy Minds. Mm. Mm. Chaliye. Let's start off with this. Let's start off with a round of success stories. पहला सक्सेस स्टोरी, सर आप सबको तो बधाई. In fact, nothing could be better and bigger than the success story of Chandrayaan 3 landing on the moon, and that too on the South Pole, जो दुनिया में कोई भी देश नहीं कर पाया. We have been talking about it, we have been feeling proud about it. हम लोगों ने पोस्ट डाली है, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है. सो एक बार और आप सबको बहुत बहुत बधाई. मुझे लगता है Chandrayaan 3 का प्रकाश पूरे दुनिया में राज करेगा और ये प्रकाश राज को समझ में आ जाएगा. कितना भी कह लो, कुछ लोगों को ना देश की कामयाबी सुहाती नहीं है, समझती नहीं है. तो जस्ट मुझे लगता है कि प्रकाश राज पे बड़ा प्रकाश हुआ होगा कि हाँ भाई, Chandrayaan 3 जो है हमारा पहुंच गया है. एंड it's a moment of pride for all of us, and it's a moment of pride for all people who are part of this wonderful nation called Bharat. तो दुनिया में अलग अलग तरह के व्यूज आ रहे हैं. I'll share with you, टाइम लगेगा तो भी शेयर करूंगा आपके साथ. But as of now, I think we can feel proud of ISRO, of the way the scientists they have worked and slogged. And जो ISRO के हमारे हेड हैं, the past failure, if you were to remember, अगर आपको याद होगा कि किस तरह वो रोए थे, एंड मोदी जी के कंधे पे उन्होंने सर रखा था और मोदी जी ने उनको गले लगाया था. एंड फ्रॉम देयर टू हियर, this is what is called bouncing back. This is what is called not giving up. अगर कोई इससे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको मिले तो आप बताना. लेकिन दिस इज सच अ वंडरफुल स्टोरी कि कहाँ एक फेलियर के बाद हमने वापस बाउंस किया, एंड वी हैव काइंड ऑफ अमेज्ड द वर्ल्ड. दुनिया को हमने एकदम ऐसा हिला दिया. द बेस्ट एंड द बिगेस्ट ऑफ कंट्रीज व्हिच वर इनटू स्पेस, वो भी हिल गई है. एक मुझे याद है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून आया था जब हमारा वो Chandrayaan 2 मिशन फेल हुआ था.
तो एक कार्टून में आया था कि एक गांव वाला जो है एक गाय को लेके डोर को नॉक कर रहा है, एंड द डोर इज ऑफ द इलीट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो स्पेस में जा चुकी हैं, चाहे जैसे अमेरिका है, यूरोप है, फ्यू कंट्रीज इन यूरोप। तो ऐसा करके कुछ चार पांच ये देशों का एक जो इलीट क्लब है, उसके दरवाजे नॉक कर रहा है, और जो बाहर नॉक कर रहा है उसको उन्होंने नाम दिया इसरो, और उसके हाथ में एक गाय दी। और आज यही जो लोग, जो देश जो इतना मजाक बना रहे थे हमारे देश का, दे हैव दे हैव हार्डली फ्यू फॉर गुड वर्ड्स टू से, दैट्स द वे द वर्ल्ड इज। तो आज उनके मुंह पे चमाटा है, ये एक बड़ा वाला चमाटा, कि दिस इज व्हाट इंडिया कैन डू, एंड a nation like ours can produce such wonders. I think each one of you has to understand the gravity of it, and the उसके पीछे का जो प्राइड है ना, वो फील करना चाहिए तुम्हें, कि ये आसान काम नहीं है जो हुआ है, दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तो हमारे साइंटिस्ट ने किया, एंड दे हैव कम बैक फ्रॉम बीइंग काइंड ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय द वर्ल्ड। और ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जहां पर छपा था एक बार, केजरीवाल जी का, जी साहब सबसे बढ़िया मॉडल दुनिया का, स्कूल का मॉडल जो है दिल्ली का मॉडल है। तो ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने मजाक बनाई थी इंडिया की। आज आई डोंट थिंक दे हैव मच टू से अबाउट दिस, एंड even the British media, they have gone a bit overboard by saying that all said and done, ठीक है, चांद पे पहुंच गए, लेकिन they should return the $1 billion they have taken in aid। अरे क्या तुम लोग, you come to know when somebody becomes successful, तो लोग क्या बात करते हैं उससे उनका चरित्र मालूम पड़ता है। तो आज हिंदुस्तान जो है, ये कामयाब हुआ है, भारत कामयाब हुआ है, तो देखो दुनिया के कैसे कैसे देश क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो वहां के कुछ मीडिया हाउसेस, दे हैव बीन स्पीकिंग अबाउट that India should return the $1 billion they have taken in aid the last so many years. Arey Baba, you return our $1 trillion which you have looted from us in the last 200 years. $45 trillion लूटा है तुम लोगों ने हमसे. So these stories will go on, but we all can feel proud, and take this कम से कम रात को सोने से पहले you feel that यार किसी हमारे भारतीय ने ये काम किया, तो फिर we should take pride in that. So let all the prakashes of our life get enlightened by this success of Bharat as such. So this is one amazing, awesome success story. Another success story is from अभी मुझे रात को ही मैसेज आया from Sagar Kaushik, one of my Chrysalis, one of my students. He says, "Sir, we have opened a new venture, mithai culture, and it's a absolute different venture of his because he's into manufacturing. वो लोहे में काम करता है, he's into forging and things like that, and casting में है, from casting to sweets and mithai." I said, wow, this is absolutely awesome jump, बिल्कुल world apart jump है. So wish him all the sweetness of life by opening this mithai shop. Another Christian, Vijay Bade, he's got a patent in his name, and but a beautiful success story is from two darlings called Ram Fuge and Subhash Sakure. And it just came a day before I was to leave for my life. बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी है इनका, और इसलिए लंबा सा उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया सा एक मेल मैसेज लिखा मुझे राम ने, एंड इसे सर हैप्पी टू शेयर दैट अ न्यू वेंचर। और सुनना इस बात को जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दे इनटू कंस्ट्रक्शन, दे हैव अ कंपनी बाय द नेम ऑफ Mangalam Constructions, and he says, sir, our new project called Mangalam Melisma is sold out 100% on launch day, and 250 flats got sold in 2.5 hours. 250 फ्लैट 2.5 घंटे में सेल सोल्ड आउट हो गए। एंड ही सेज हमारे इवेंट्स से बहुत अच्छे इवेंट्स होते होंगे मार्केट में। यार उससे बड़ा अच्छा सा मुझे मैसेज भेजा कि सर हमसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट में, हमसे बहुत से अच्छे दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट में, पर कस्टमर को भगवान मानकर उससे सबसे बेस्ट देने की नीयत जो आपने हमारे अंदर डाली है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो आज जो 250 फ्लैट बिके हैं, इट्स अ रिजल्ट ऑफ दैट नियत व्हिच यू हैव बीन एबल टू क्रिएट इन अस। सर, मैं और सुभाष सर, वी हैव बीन ट्राइंग टू इंप्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच एवर यू हैव टॉट अस, एंड वी नेवर compromised on our values. We always focus on our vision and our best to bring the best culture in our organization. We, sir, no one will believe, sir, we have invested 30% of our working hours on culture building. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना आप नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि सर 30% ऑफ वर्किंग टाइम इज ऑन कल्चर बिल्डिंग। और मैं एंटरप्रेन्योर्स को कह के थक जाता हूँ कि डोंट टेक कल्चर बिल्डिंग लाइटली।
ये आज बिजनेस का प्रोग्राम नहीं है, बट आई एम स्टिल शेयरिंग विद यू कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पे फोकस रहते हैं, धंधा आवे, धंधा लाओ, सेल्स लाओ, नंबर बढ़ाओ, टॉप लाइन बढ़ाओ, बॉटम लाइन बढ़ाओ. Agreed. That is a way by which we measure the success of an organization. But what makes it successful? ये तो मेजरमेंट है कि आपका सेल्स बढ़ रहा है तो ये मेजरमेंट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मेजरमेंट है. लेकिन हुआ कहां से? और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है. एंड आई बीन सेइंग इट, आई बीन पुशिंग एंटरप्रेन्योर्स. लेकिन क्या है ना, एक संस्कार लाने में बड़ी जान जाती है, अपने बच्चों के अंदर संस्कार लाने में जान जाती है. तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में संस्कार बिल्ड करने में जान जाती है. और वो जान डालना नहीं चाहते, बिकॉज वी वांट क्विक रिजल्ट्स, वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स. तो वो बोलते हैं 30% टाइम वी स्पेंड ऑन कल्चर बिल्डिंग. एंड बहुत सारे लोग सरप्राइज होते हैं दैट हाउ वी कैन अफोर्ड टू स्पेंड टाइम फॉर कल्चर बिल्डिंग फ्रॉम आवर वर्किंग आवर्स. तो लोग उनको क्वेश्चन करते हैं, ये क्या पागलपन चालू है तुम्हारा? एंड आई हैव सीन देम डूइंग अ लॉट फॉर देयर टीम. एंड he says, but we really mean that our Mangalam team is not for the sake of saying family, but we actually feel that it's our family. सिर्फ कहने को हम फैमिली के रूप में नहीं बोलते, बट हमारी फैमिली है एंड उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं. सर ये कल का इवेंट जो उस समय हुआ था, आई थिंक 10-11 तारीख को इवेंट हुआ था इनका. he says the event was huge success sir. We were the first time in this area जो उनका जहाँ पर उन्होंने फ्लैट बेचा. And he says that all big players were there and we too were new and we were small. लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी वैल्यूज जो हमें सिखाई, हमने ये काम कर दिया. एंड ही सेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इवेंट वाज, एक इंसान जिसने फ्लैट लिया वो रोया. सॉरी, ही सेज वन पर्सन क्राइड बिकॉज उसको फ्लैट नहीं मिला, एंड वन लेडी क्राइड अ लॉट फॉर गेटिंग अ फ्लैट ऑफ हर चॉइस. ही सेज दो लोग रोए, एक को फ्लैट नहीं मिला और एक लेडी को फ्लैट मिला उसके चॉइस का. एंड ये हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कोई फ्लैट ना मिलने पर रो रहा है और कोई फ्लैट मिलने पर रो रहा है. तो हमने क्या क्रिएट किया, हमें आज समझ में आ रहा है. That's what he wanted to communicate. So whatever success we have achieved till date, sir, the major role is of yours. And for this, we are going to give you 10% of our share of profits. ऐसा नहीं लिखा है. ऐसे मैंने ऐड किया. But I'm so happy for them that the way they have grown phenomenally. और मेरी बातों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. अगेन कमिंग बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस, कि आप लोग हैप्पी माइंड्स अटेंड करते हो, आप लोग सब सुनते हो, समझते हो. मेरा आपसे कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है मेरी, इम्प्लीमेंट करो यार. आई कैन नॉट डू इट फॉर यू. आई कैन जस्ट शेयर. आई कैन, ये मैं ऐसी स्टोरी सुना सकता हूँ, मैं आपको हर हफ्ते आपके लाइफ को अच्छा करने की मैं रास्ते बता सकता हूँ, बट मैं आपके बिहाफ पे जी नहीं सकता. आई विश आई वुड डू दैट. मैं वो भी करने को तैयार हूँ अगर मैं कर पाता. वो पॉसिबल नहीं है. आई विश आई कुड live on your behalf. I wish I could work hard on your behalf. I wish I could love people on your behalf. I wish I could run your business on your behalf. I wish. लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि द फैक्ट ऑफ लाइफ इज, हर किसी को अपना जीना करना है, हर किसी को अपना मरना करना है. सो nobody can live on our behalf, nobody can die on our behalf, है ना. तो सिर्फ मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि कैन यू पुश योरसेल्फ, कैन यू पुश योरसेल्फ टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्नड. चाहे वो कोई किताब पढ़ी हो, चाहे कोई ऐसा वेबिनार हो, चाहे आप किसी भी घर में किसी भी इंसान की अच्छी बात सुन रहे हैं, क्या अगर आपको वो अच्छी लग रही है, कैन यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. I was there a day before in my farmhouse in Uttarakhand, and my uncle had come in to stay for a night with me. And I was talking to Rachna that it's such a wonderful habit he has got, कि वो अपना सारा काम खुद करते हैं, वो बाथरूम खुद साफ करते हैं, वो अपने कपड़े खुद धोते हैं. And I said, this is so wonderful. कि can we pick up this trait of his in our lives, and we take care of our own things. At least दूसरा का नहीं करें, कम से कम खुद का तो कर लें. और it is such a wonderful thing. It's a very soulful thing to, like a saint, you do your own things. तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं हमारे आसपास जो हम समझते हैं और हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन यही है कि हम समझते हैं अच्छी लगती है, लेकिन उसके आगे हम बढ़ते नहीं. सो इम्प्लीमेंट करिए. अगर मैंने इस स्टोरी शेयर करी है ऑफ मंगलम, दी इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर अ लीडर इन योर कंपनी, तो मुझे लगता है कि कल्चर बिल्डिंग शुड बी योर प्रायोरिटी, शुड बी योर प्रायोरिटी. और अगर आपको कल्चर बिल्डिंग सीखना है,
then I'm there to teach you and train you in that. ठीक है? हाँ जी, मेरे साथ हैं आप लोग? I don't know if Ram and Subhash are there with me today or not. Uh, stay alive, bhai. Stay alive, stay excited. हाँ जी, great. Lovely, lovely. Keep typing something so that you stay awake, alive. सुबह का समय. Hmm, great. Good to see you, Rishi, there. Wonderful. Another success story. Do I have another one? Ah, we have another success story of Devyani Jagtap, and this is a lovely success story. This is entire family of the Jagtaps, Sangram, Devyani, Madhura, and the entire family is a Crystalline family, and they have got a beautiful nursery, and it's beyond. It's more than a nursery. They also what is that word used to uh, they grow saplings. They kind of from the seed side to bringing it to nursery level. That's what they do, and they're supplying these exotic plants across horticulture. Yeah, horticulture to hai unka, but they are also into supplying this across the country. And I've seen them for the last many years, and it's so wonderful that Devyani, the daughter of Sangram, she has been selected amongst the top 16 across the country for Miss Diva, and it's the step before Miss Universe. तो इसके में अगर वो select होती हैं तो फिर the one who is selected in Miss Diva will represent India in Miss Universe. So संग्राम का मैसेज आया, देवानी का मैसेज आया कि this is there, and I said wow, this is fantastic, and my blessings, my wishes are there, and कुछ उनका वोटिंग शूटिंग का भी चक्कर है. मैंने डाला है शायद पोस्ट कहीं पे सोशल मीडिया में. यू कैन पोस्ट for Devani if you feel that she is worth it and she should win. तो आप उनको क्लिक करके you can do some voting for her. I don't know how much those votes will add on, but wishes तो सबको add on करती हैं. So my best wishes, and I wish that one Crystallian becomes Miss Universe. So it'll be the highlight, one more highlight for me कि हमारे फैमिली में से कोई मिस वर्ल्ड में गया और मिस वर्ल्ड जीत लिया. But even reaching 16, top 16 is awesome from across the country. This is phenomenal. So another beautiful success story. And I think that's how it is. Have I missed out on some success story which is worth sharing? To let me know. Anji? Ah, and of course, I missed out on one story of one of my life participants. She had shared this last time, but it was too late that she shared. And this sharing is that she has become a principal. Uma, I think she is attending Happy Minds, and she has just been elevated to the position of principal. And अभी वो head mistress हो गई है. अभी तो she will go to बच्चों की बजाने वाली है मैडम. So congratulations, Uma, on becoming the principal. I'm sure this phase of your life as a school principal, you will create some awesome benchmarks, not only for students, but also for teachers as to how they can give their best to the students. और it all flows from top to bottom. मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि जो आपने माई लाइफ में से पिकअप किया, जो आपने अपनी जिंदगी जी है इतने सालों में एज अ टीचर, as as an academician, तो आप उसको यूज करोगे और स्कूल को अलग लेवल पे लेके जाओगे. Oh, there she is. I'm here. Wow, great. चलो, wonderful. चलिए, before we move on to understanding what stops us from growth, एक छोटा सा वीडियो शायद मेरी टीम ने बनाया है to share with all of you on my life. I don't know if it's there. It's there, बेटा? Yes, sir. हाँ. And then I'll come back to you. Just let me have this video shared. फिर मैं आता हूँ.
मैंने भी वीडियो पहली बार देखा. The beautiful compilation, all the memories came back of last whatever days we were there together. And when it started, तो मुझे याद आया कि मैंने first session जो है ना एयरपोर्ट में ही ले लिया. It was, I think it was a beautiful first for me and for everybody in terms of कैसा लगा तुम लोगों को the video? Mm, in fact, I had posted some days back on social media this very thing that of all the programs I take, I take the business programs, which are multiple times in terms of the fees and the investment which is there. I take leadership programs. I take programs abroad. तो जितने भी मैं प्रोग्राम्स लेता हूँ, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें से मैं I come out glowing, I come out with a smile without a reason, if I come out high on energy, it is my life. So, and a lot of people ask me, sir, why don't you take it again and again and again? तो नहीं होता है, I just take it once in a year. तो कभी भी अगर मेरा कोई प्रोग्राम कभी करना हो और इच्छा हो, तो फिर you should attempt for my life. I don't know how many of you can come because we have a just limited intake of limited number, and I do it once in a year. But कभी अगर इच्छा हो लाइफ में तो ये प्रोग्राम जरूर करना मेरे साथ. Invest some days with me, and it will be very life transforming, that's for sure. And मैं आपसे शेयर कर रहा था कि when I was at the airport and we were there, so we met at Delhi airport. और वहां बेल्ट से लगेज बेल्ट से हमने लगेज लिया एंड आई सेड ओके लेट्स स्टार्ट वन सेशन देयर. एंड इट वाज अ फर्स्ट फॉर मी कि एयरपोर्ट में हमने एक आधे घंटे का एक सेशन ले लिया. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, द फर्स्ट फॉर मी एंड आई थिंक फर्स्ट फॉर एवरीबॉडी कि एक एयरपोर्ट में वी स्टार्ट द लर्निंग जर्नी. सो दैट्स हाउ इट वाज. एंड वी हैव अ few. हाँ जी, Pooja, you have got your hand up. You want to share something? You can unmute yourself and share. Otherwise, put your hand down. Mm. You can unmute yourself if you want to share something, Pooja. Mm. And we have a success story from Vandana. She says, "I become the president of IWC Ambala, 150 members, and it's great." I don't know what IWC is, but congratulations, Vandana, that you have become the president. And as a president, you have a big responsibility to take that club of yours to a high which it never was in the history of its last 100 years. It's inner wheel club. Okay, great. अभी inner wheel के through बहुत सारे अच्छे काम होते हैं दुनिया भर में, and I'm sure your club will also have its objectives set. चलो, let's talk on this subject of what stops us from growth. बहुत simple है, but अगर इसको आप दिल में गहराई से लोगे तो सब्जेक्ट आपको अपील करेगा. So we have many times we have seen, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ जो हमारी नजरों में बड़ा है, जो हमारी नजरों में बड़ा अच्छा है, हम वो करना चाहते हैं, बट हम कर नहीं पाते. अक्सर हम वी काइंड ऑफ वी आर ऑफ ट्रैक. अक्सर हम लोग देखते हैं पीछे मुड़ के तो वी रियलाइज दैट यार नहीं कर पाए, वी कुडंट डू दैट. तो आप जब जितना मैंने सोचा इसके बारे में और जितना आप भी सोचोगे इस बारे में, आपको रियलाइज होगा दैट हम कुछ एक अच्छी बड़ी जिंदगी बनाने से, बड़ी का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा और बहुत, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, हो गई तो अच्छी बात है. बड़ी का मतलब इम्पैक्टफुल. हम एक इम्पैक्टफुल जिंदगी बनाने से चूक गए. चाहे वो हमारे बच्चों के लिए इम्पैक्टफुल हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों के लिए इम्पैक्टफुल हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पैक्टफुल हो. सो यू डिसाइड ऑन दी दायरा, ऑन दी एरिया ऑफ इम्पैक्ट. आप डिसाइड करो. तो मैं बड़ी जब बात करता हूँ कभी, तो मैं बड़ी पैसों को लेकर कभी बात नहीं करता. दैट हैज नेवर बीन माय एरिया ऑफ कनेक्ट. मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट. द बिगनेस ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट. मैं बड़ी हमेशा बात करता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट. दैट इफ यू रियली वांट टू हैव एन इम्पैक्टफुल लाइफ, इट इज नेवर, और हम अगर कहीं चूक रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज देयर इज अ मेजर लकूना. इट इज नॉट बिकॉज देयर इज अ मेजर फ्लॉ. It is because there is some flaw, some lacuna in the fundamentals. कुछ बेसिक्स की मारामारी में प्रॉब्लम. इट इज नॉट बिकॉज कोई बहुत बड़ी चीज रह गई हो हमसे. इट इज जस्ट सम fundamentals which have not been taken care of.
मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी. द स्टोरी वाज ऑफ अ ब्राजीलियन फुटबॉल टीम. एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस, दैट ब्राजील जो है वो फुटबॉल में भाई आज भी नाम है, तो कुछ साल पहले बहुत नाम था. 1960s में पहले थे जब अच्छे अच्छे स्टार प्लेयर्स थे, तो ब्राजील वाज दी कंट्री इन द वर्ल्ड. And then of course Argentina I and things like that. But Brazil was the country to look up. तो ऐसा स्टोरी बोलती है कि ब्राजील लॉस्ट अ मैच टू सम नॉट सो बिग अ कंट्री. और बड़ा हंगामा हुआ पूरे देश में कि ऐसे कैसे ये ब्राजील मैच हार गई. सो they came back to their dressing to their rooms, and everybody was upset. Spectators बड़े दुखी होके घर गए. Coach was upset, and the team captain was upset, and things like that. तो वो लोग जब वापस ड्रेसिंग रूम में गए तो the coach said, we have no time. We have no time to go back to our hotels and come back. We start practice immediately now. Change and let's go back to the field. So within 15-20 minutes, the entire team was on the field. And the coach had the football in his hand, and the entire team was there. तो कोच चालू करते हैं अपनी coaching again by holding the football in his hand, and he tells the entire team, hey guys, this is the football. And he starts speaking about what football is all about. And he says, you did not lose the match because there was some big flaw in all of you. You lost the match because you had some basic fundamentals which went for a toss. कुछ basics. कोई बहुत बड़ी चीज की वजह से आप मैच नहीं हारे. So let me start by telling you what a football is. Let me start from basics. और आप पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ. Whatever we have achieved, whatever we have not been able to achieve, आप देखोगे कि जो आपसे रह गया अचीव करने को, कहीं some basics were not taken care of. कहीं थोड़ा केयरलेसनेस हो गया, कहीं थोड़ी डिसिप्लिन की कमी होगी. Not that you lacked rocket science, not that you lacked huge intelligence, not that you lacked some great knowledge. It was some basics which were known since centuries to you. और अगर उन बेसिक्स पे काम कर लिया, जो फंडामेंटल्स हैं ग्रोथ के, अगर उस पे काम कर लिया, तो फिर हम कहां से कहां पहुंचे. प्रॉब्लम क्या है? वी अवॉइड इग्नोर द फंडामेंटल्स बिकॉज वो सुनने में दिखने में इतने सरल है, इतने आसान है. अच्छा ये छोड़ो ना, अभी आगे बड़ी बात करो. अरे जब एबीसीडी नहीं सीखी है तो शेक्सपियर लैंग्वेज कैसे पढ़ोगे? जब 2+2 जोड़ना नहीं आता है तो एल्जेब्रा की बात क्या करेंगे? जब शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो फिर उससे हायर पर्सनालिटी, माइंड और इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी की क्या बात करेंगे? When the basics go for a toss, trust me, when the basics go for a toss, then the bigger things are worthless. फिर उसकी बात करनी बेकार है. किसी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन ही वीक है तो ऊपर उसका फसाद, उसके ऊपर की कितनी मंजिल बनेंगी, वो बात करना ही बेकार है. So all of us, if you have to look into your lives, तो कहीं आपके फंडामेंटल्स में कहीं चूक हुई है. नॉट दैट यू डिड नॉट नो अबाउट इट, यू जस्ट इग्नोर्ड इट. ना मैं एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल आज आपको देने वाला हूं. बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत बढ़िया. एंड दिस इज कम फ्रॉम माय मीटिंग, इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल. कुछ स्टेटमेंट आपको शेयर करते हैं, और जो मैंने सुने और आप लोगों ने भी सुने होंगे ये स्टेटमेंट्स, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आई समटाइम्स आई मीट एंटरप्रेन्योर्स और टीम मेंबर्स. तो टीम मेंबर्स मुझसे कहते हैं, सर यू नो ये सैलरी इतनी है, बस सैलरी में और क्या करेंगे? What more do you want me to give? This is the salary they give me, and this is what I give. Entrepreneur बोलता है कि उसने ज्यादा मांगे नहीं, उसने जितने मांगे मैंने दे दिए उसको. जितनी सैलरी उसने मांगी मैंने उसको उतनी दे दी. मैं ज्यादा दे भी सकता था लेकिन उसने मांगी नहीं तो मैंने सैलरी दी नहीं. कभी सुनने में आए ये डायलॉग्स? कोई टाइम पे नहीं आते सर, तो मैं भी टाइम पे आके क्या करूं? बात सही है.
ऑफिस में सर कोई मैकेनिज्म नहीं है मेजर करने का कि कौन कितने बजे आ रहा है, तो फिर हम भी निकल जाते हैं, हम भी ऐसे आ जाते हैं ना। इफ यू टू अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे सारे स्टेटमेंट्स अगर आपने सुने होंगे। कभी लोग मुझे मिलते कहते सर आप होते ना तो एनर्जी आ जाती है, आपके एब्सेंस में थोड़ी सी एनर्जी वीक हो जाती है। कोई बोलता है कि जब घर में ना कोई इंसान होता है तो लाइक एग्जाम्पल, अ फादर कम्स होम, द एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट, व्हेन अ फादर इज नॉट एट होम द एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट। ऐसे अगर आप देखो ना बहुत सारे स्टेटमेंट, जब कांस्टेबल सामने है या ट्रैफिक कांस्टेबल सामने है तो वी आर काइंड ऑफ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। जब कांस्टेबल नहीं है तो फिर रेड लाइट हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, ब्लू हो, जो भी लाइट लगा दो हम तो निकल जाते हैं। Am I right or not? So we are not law abiding citizens, we are traffic constable abiding citizens। जब तक वो दिख रहा है अपने को कांस्टेबल, तो हम लॉ अबाइडिंग है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट से अपने आप को कनेक्ट किया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ये ऑफिस का कल्चर खराब है इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हो? सब लोग लेट आते हैं तो इसलिए भी आप लेट आते हो? वो उतना सैलरी दे रहे हैं तो फिर आप उतना ही काम करो जितना उस सैलरी के हिसाब से है। आप उतना ही दे रहे हो जितना वो मांग रहा है, जबकि आप और दे सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके कोई पर्सनल स्टैंडर्ड्स नहीं है? कि सारे स्टैंडर्ड जो आपके हैं, जो आप दे रहे हो, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन पीपल? क्या आपके कोई खुद के पर्सनल स्टैंडर्ड्स नहीं है? यस, आपके स्टैंडर्ड सिचुएशनल होंगे कि अगर मौसम होगा ठीक तो मैं उठ जाऊंगा। अरे आपका खुद का कुछ वजूद है कि नहीं है? अगर वो सैलरी अच्छी देंगे तो मैं ज्यादा काम करूंगा। अरे आपका खुद का कुछ पर्सनल लेवल है कि नहीं है? नहीं वो मांगेगा तो दूंगा, अरे आपका खुद की कुछ सोच है कि नहीं है? एंड दैट्स वेयर वी आर स्टक मोस्ट ऑफ अस। हमने अपने स्टैंडर्ड्स को, हमने अपने जो हमारा लेवल होता है जीने का, हमने उसको गिरवी रख दिया है सिचुएशंस के लिए। हमने उसको गिरवी रख दिया है लोगों के प्रति, कि जब लोग डिमांड करेंगे तो हम देंगे, सिचुएशन डिमांड करेगी तो हम देंगे। अरे हमारा खुद का कुछ है कि नहीं है? सो इन योर बिजनेस, इफ यू टू सी, इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आप जब अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करोगे ना, यू विल रीच अ सर्टेन लेवल ऑटोमेटिकली। कितना सुनने में आता है, अरे वो हमारे बच्चे की शादी में आए थे तो उन्होंने इतना ही गिफ्ट दिया था, हम भी यही देंगे। अरे उन्होंने जो दिया वो तो दिया, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है? कि हम तो इतने, उन लोग इतने का है, वो उन्होंने 100 रुपए दिए थे, हम भी 101 रुपए देंगे। अरे आप तो 501 रुपए दे सकते हो ना, आप तो 1000 दे सकते हो। आपका स्टैंडर्ड कहाँ गया? वो हमें विश नहीं करते, हम भी उनको विश नहीं करेंगे। अरे उन्होंने नहीं किया, आपका स्टैंडर्ड कहाँ गया? तो हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड को लो करते आगे, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का स्टैंडर्ड लो है, हम उनसे कंपटीशन में आ गए कि ठीक है हम भी लो करेंगे। एंड दैट इज व्हाई यू हैव मिस्ड आउट ऑन योर ग्रोथ। मेरा आपसे कहना है कि इन स्पाइट ऑफ द वे द वर्ल्ड इज, कैन यू होल्ड ऑन टू योर स्टैंडर्ड? लोग तो लोग है ना, दुनिया दुनिया है, वो तो जैसे बिहेव करेगी करेगी, लेकिन हम तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं ना। हमें लोगों ने घर पे खाने पे बुलाया, उन्होंने जो खाना खिलाया वो उनका है। हम तो अपने घर पे लोगों को बुला रहे हैं ना, हमारा स्टैंडर्ड तो हमारा है ना, हमारी सफाई का लेवल तो हमारा है ना, हमारे काम करने की काबिलियत तो हमारी है। हम कैसे अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर देते हैं बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑर्डिनरी? आई हैव इन माय लाइफ सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन एंड आई हैव डन दैट, आई हैव मेंटेन्ड माय पर्सनल स्टैंडर्ड्स। कितने बार ऐसा होता है, प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है तो प्रेशर तो आता ही है। चाहे वो सुबह का हैप्पी माइंड 7 बजे लेना हो तो लेना है तो लेना है, वेदर आई एम, इफ आई कमिटेड आई विल टेक इट, आई विल टेक इट। अब वो कौन सी जगह पे हूँ, कौन से होटल में हूँ, नेटवर्क है कि नहीं, क्या है, इट्स माय पर्सनल स्टैंडर्ड, उसके लिए जो मुझे मारा मारी करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। तो प्रेशर आता है तो प्रेशर आता है, बट दैट प्रेशर इज गुड। जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं ना, तो कुछ प्रेशर अच्छे होते हैं, वो हमें अच्छा बना देते हैं। लास्ट 26 years ऑफ माई लाइफ ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, 27 ही हो गए होंगे अब तो, आई हैव नेवर बीन लेट।
फॉर एनी ऑफ माई टॉक्स। तो स्टैंडर्ड है ना अपना। तो मेरी लाइफ में भी तो तूफान आता है, मेरी लाइफ में तो बारिश आती है, मेरी लाइफ में तो बाढ़ आती है, मेरी लाइफ में भी ट्रैफिक जैम होते हैं। जिससे सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में होता है। थोड़ा ना मैं सुपरमैन हूं। लेकिन अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स को अगर आपने टॉप में रखा कि दिस इज व्हाट माय स्टैंडर्ड इज, तो फिर आपके लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं आएगी? यू दे विद मी ऑन दिस? आप कनेक्ट कर पा रहे हो? ये सिंपल सी बात है। दीज आर बेसिक्स ऑफ ग्रोथ, बेसिक्स ऑफ ग्रोथ। सो जब आपने जब सोचा कि यार मैं तो परफॉर्म करूंगा बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल डिमांड और एक्सपेक्ट, अरे जब उसकी जो सामने आपका इंसान है, उसकी वो बेचारा वो तो दरिद्रपन से ऊपर उठा है, उसकी एक्सपेक्टेशन अगर जीरो है तो आप क्या जीरो बिहेव करोगे? अरे आपकी स्माइल तो आपके स्टैंडर्ड है ना, आपकी लाफ्टर तो आपकी स्टैंडर्ड है। आप क्यों अपना स्टैंडर्ड को गिरा रहे हो जस्ट बिकॉज द वर्ल्ड इज डिफरेंट अराउंड यू? सो वॉट एवर हैपेंस, ये बात अपने मन में डाल लो कि माई स्टैंडर्ड्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। Even if the world does not demand the best from me, I'll give my best. Even if the world does not pay for the best from me, I'll give my best. And if that's the way it is, why will you not grow? Who will stop you from growing? When your own standards are above everything else, why will you not pursue excellence? और एक्सीलेंस उन्हीं का लाइफ का हिस्सा होता है जो बाहर के एनवायरनमेंट पे अपने आउटपुट को निर्भर नहीं करते। They don't have their output based on the environment outside. They say, "We, I'm going to give my best. This is my excellence. My excellence is not vis-a-vis to the world. कि दुनिया में ये excellent है तो मैं उससे मैच करूंगा ना, मेरे excellent यही है, and that's the best from my side. You want it, you don't want it, I'll still give my best. If that's the way you look at it, that's the way you approach it, why will you not grow? जब हमारा आउटपुट, हमारा जीने का तरीका इज कंडीशनल, why will we have growth? कभी देखा किसी बगीचे में गुलाब को खिलते हुए? उसने क्या कंडीशन डाली है क्या कि पहले 100 लोग देखने आएंगे तभी मैं खिलूंगा, कि 100 लोग मेरी फोटो खींचेंगे, मुझे निहारेंगे, मेरी तारीफ करेंगे तभी मैं खिलूंगा? मेरा स्टैंडर्ड 100 लोग, पहले 100 लोग लेके आओ फिर मैं करूंगा। कहता है यार एक आओ, 100 आओ, कोई नहीं आओ, मेरा काम तो खिलना है और मैं खिलूंगा ना। मेरा काम है खुशबू फैलाना, मैं खुशबू फैलाऊंगा ना। दैट्स व्हाट अ रोज डज। इनफैक्ट दैट्स व्हाट एवरी क्रिएशन डज। एवरी क्रिएशन वो अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड की जिंदगी जीते हैं। जो उनको बनना होता है वो बनते हैं, जो उनको करना होता है वो करते हैं। हमने अपने स्टैंडर्ड्स को हमने लोगों के हमने डाल दिया है लोगों को, वो लोगों का मोहताज हो गया कि लोग करेंगे, जमाना प्रश्न डालेगा तो हम कुछ करेंगे, हम कुछ बनेंगे। हाँ जी, कुछ बात पकड़ी आपने। बात कंपैरिजन की भी नहीं है चंद्रकांत, बात इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट my standards are my responsibility. My standards will not lower, will not reduce. I will not give up on my standards. I will not give up on my style of living, on my good style of living, just because the world is not demanding it from me. Hmm? Just because the world is not demanding. Should I lower my performance? My performance is my responsibility. My performance is not an outcome of the salary which I get. My performance is not the outcome of the appreciation I get. My performance is my responsibility. And if that's the way you look at life, why will you not grow in life? Why will you not grow? So all of you are working in companies, irrespective of the salary which you get, आपने
काम हाथ में लिया ना, जब आपने काम हाथ में लिया तो फिर आपका काम हो गया. नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद योर सैलरी. इट हैज नथिंग टू डू विद योर एनवायरमेंट. इट हैज एवरीथिंग टू डू विद यू. नाउ गिव योर बेस्ट. या तो काम लेते नहीं ना हाथ में, काम लिया तो फिर इट हैज टू बी ऑफ योर स्टैंडर्ड. इट शुड स्पीक ऑफ यू. एवरी टाइम यू डू अ जॉब यू शुड आस्क, हे इज इट मी? क्या ये मेरे से ऐसा काम अपेक्षित है? So every time you ask yourself, you do something, is it my standard? Is it my standard? If not, don't give it up. Work on it. Some of you will have this question कि सर इससे तो बहुत प्रेशर आएगा. आएगा ना, अच्छा है ना प्रेशर तो. The day you become ठंडा in your outcome कि अब तो ऐसे ही होता है सर, you will stop growing. देखो ना कितने ठेले वाले हैं, कितने छोटे दुकानदार हैं. You see that 90% of them वो अपनी कॉस्ट कम करके अपना क्वालिटी को गिराते हैं. As a result, they are not growing. बट देयर विल बी सम, और ये बहुत कम होते हैं, 5%, 7%, 10% लोग होते हैं जो कहते हैं सर हमें अच्छा माल देना है ना, हम अच्छा देंगे. थोड़ा पैसा कम आता है, थोड़ा प्रेशर आता है, थोड़ा सा मारा मारी करनी पड़ती है, बट दे आर द वंस हु ग्रो फ्रॉम 1 to 2 to 4 आउटलेट्स, बिकॉज उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लोगों के देने की काबिलियत पे निर्भर नहीं किया. दे दे जस्ट अ सेलेक्ट फ्यू. सो सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास. And the fact of life is that the reason why we are not growing, many of us are not growing, is not because कोई बहुत बड़ी चीज मिस हो गई है हमसे. It's because some basic fundamentals have not been taken care of. And this is one fundamental I want you to hold on to. Your standards are your standards. Don't lower your standards for what the world is around you. Please uphold your standards. घर में अगर आपने किसी को खाने पे बुलाया है ना, तो फिर your standards are your standards ना. वो it should not depend on who is coming in. It doesn't depend on whether you have called कि आपने कभी चलो सोचा कि यार I'll call my जितना भी मेरा स्टाफ है उसकी फैमिली को घर पे बुला रहे हैं, तो आपका ड्राइवर, आपका मेड, आपका उनकी फैमिली को खाना खिला रहे हो, तो उनके लिए अलग से ऑयल यूज होगा, उनके लिए अलग से कुछ यूज होगा. जो आपका स्टैंडर्ड है, आपका स्टैंडर्ड है ना. should not change, and be conscious of it as many times as possible. क्योंकि स्टैंडर्ड को लोअर करने की भी आदत पड़ जाती है, और फिर जब लोअर करते हो तो लोअर करने की कोई लिमिट नहीं है, फिर कहाँ किस गड्ढे में गिर जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा. और स्टैंडर्ड को हाई करने की भी कोई लिमिट नहीं है, हाई करते 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 कहाँ पहुंच जाओगे उसका भी अंदाजा नहीं है. The choice is absolutely yours. You there with me on this? So मैं अपना स्टैंडर्ड जितना हो सकता है मैं अपहोल्ड करता हूँ. It is challenging at times to carry my camera, to carry my mic and things like that. I'm traveling, but मैं कहता हूँ यार एक स्टैंडर्ड तो है ना. कभी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया, बिल्कुल ही हाथ से बिल्कुल रहा कि ये नहीं हो सकता, then I will see what I can do. But as long as it is on top of my mind, फिर उस चीज से आप अपने आप को ऊपर ले जाते हैं. हाँ जी, all of you alive with me? कुछ any insights, or you're stunned? हाँ, जिंदा है सर. एब्सोल्युटली कुछ अभी शुड बी. सर मामू देखें तो क्या है. मतलब क्या क्या लिखते हो? आई मिस्ड आउट ऑन सो मेनी कमेंट्स देयर. क्या लिखा है मानसी ने? ऑसम, आपने लाइफ की याद आ माय लाइफ. अच्छा ये तो पहला वाला कमेंट है मानसी का. सर मामू देखते ही मैं कल्टी मार लेता हूँ. अरे ओफो. चलो चलो भी कमाल हो. जिंदा है तो मुझे आई थिंकिंग सुपर सर, alive and charged up for the week. Great. This is a weekly dose. तो इस हफ्ते मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है, इस हफ्ते आप लोग अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉन्शियस रहें.
स्टैंडर्ड्स को कॉन्शियस, अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स, आपके ऑफिस के स्टैंडर्ड्स, आपके ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स, आपके खाना खाने के स्टैंडर्ड्स, आपके कपड़े पहनने के स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखो यार, वो लोअर नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट डिमांडिंग, इट डज नॉट मीन यू लोअर इट। आप बिल्कुल मेंटली टिप टॉप रहो, फिजिकली टिप टॉप रहो, कपड़े वाइज टिप टॉप रहो, क्योंकि ये आप हो। सो ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से, ए इज इट मी, इज दिस एक्सपेक्टेड ऑफ मी, इज दिस माई स्टैंडर्ड। मैं अपनी टीम को हमेशा बोलते रहता हूँ, इज इट क्रिसलिस स्टैंडर्ड, बिकॉज क्रिसलिस से बहुत कुछ अपेक्षा है लोगों को, और क्रिसलिस से हमें बहुत अपेक्षा है। सो इट हैज टू बी माई स्टैंडर्ड मैन, इट हैज टू हैव आवर फ्लेवर देयर। तो बहुत बार हम कॉम्प्रोमाइज करने से हम बच जाते हैं, हम नहीं करते। सो कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, सरफ से धो डाला। सो मेरा इस हफ्ते का वीकली शॉट है, आई फील दैट कीप योरसेल्फ this thing alive, but yes, it's simple and now made simpler. Thinking, sir, repenting why I missed on the last few sessions. Oh, कोई बात नहीं. My feelings, your words. Wow, it's weekly bath with good soap. Wow. तुम लोग क्या क्या बोलते हो एचएम को यार, वीकली बात विद गुड सोप। भाई एमजी नहला रहा है तुम लोगों को ना साबुन से। चलो, great. I need to rush for my talk. The talk is going to be starting soon, and I'll be heading for addressing this company in Delhi here. Looking forward to a great leadership talk. So it's छोटी बात है लेकिन बड़ी मुद्दे की बात है, ठीक है? Keep your personal standards alive. एमजी सर की जय हो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। तुम सबकी भी जय हो। अपने अपने वीकली शॉट्स लेके जाओ और मुझे अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनाओ। तुमने अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स को कहाँ अपहोल्ड किया, और जान जाती है, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी मुश्किलात होती है, बट वही तो ग्रोथ है, और क्या है। वही करते रहोगे जो करते आए हो, तो फिर कहाँ ग्रोथ मिलेगी। आपको होल्ड करना है अपने स्टैंडर्ड्स को। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, इट गुड टू सी यू विनोद, lovely, wonderful. And I'll see you next week with another dose, another weekly shot of mine. ठीक है, तब तक make sure you uphold your personal standards. So God bless you, Amol, Vishwas, Ganesh, Anita, Rajinder, and some of you I missed early. Ramnath, Mansi, Mantra, Deepak. Thank you, Deepak. God bless you. Thank you. Amit,